Hello everyone, good morning. Welcome to the lecture of DRCS. In a previous lecture, we have started one example based on a design of counterfort retaining wall, and we have also calculated some example based on a design of cantilever retaining wall. So let's start the design of stem. So stem is a slab. So basically the stem slab is designed as a continuous slab spanning between the two counterforts. So first of all we should calculate a pressure at the base of the stem. So here you can see a figure of retaining wall, and this is the stem portion and this is the counterforts. So this is the deflection profile of this stem portion. So here a moment will be positive and moment will be WL square by 24, and here in a counterfort at a mid span moment will be WL square by 12, and that will be a negative moment. So let's start calculation of pressure at the base of stem. So pressure will be a Ka into gamma into H, where Ka is 1/3, gamma is 16 and H is a 7.55. H हम लोगों ने आगे ऑलरेडी ये जो रिटेनिंग वॉल है उसकी जो स्मॉल एच की हाइट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, वो है 7.55. So pressure will be 40.26 kilonewton per meter square. So now we will calculate a different moment. So first of all let's calculate moment at a support. So support means near counterfort, near spacing of counterforts. So mu will be WL square by 12 at a support. So we will multiply this moment with the 1.5, so we can get a working moments, right? So at support mu will be a minus 45.30 kilonewton into meter. At a mid span mu will be a WL square by 24, as we have already seen in a previous figure. So we will multiply this moment with 1.5. So again we can get factored moment here. So after finding mid span moment and support moment, we will calculate a percentage of steel at supports. So for finding the percentage of steel we will use SP16, page number 48. So here we can get a PT 0.210 percentage. So from percentage of the steel we can find out the area of the steel. We have one equation, PT by 100 into B into D. So we will put a value of PT as a 0.210, B is 1000 and D is 250, as we have already calculated D. So we will put these values in this equation and we will get AST. So AST will be 525 mm square. AST मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये स्टील प्रोवाइड करेंगे. So let's assume a 12 mm dia for support at support. So we will provide a 12 mm dia at 210 mm center to center spacing. So after providing this steel at a 210, we will find out the provided AST. So provided AST is a 539 mm square. So this 12 mm dia at 210 mm center to center at support near counterfort in a horizontal direction, right? Now we will find out the steel at a mid span. So for finding the steel at a mid span, we will take mu 42.64 kilonewton into meter, because we have already calculated mu for mid span. So after finding mu upon BD square, we will find PT. So PT is here 0.10 percentage, but minimum criteria of the steel is 0.12 percentage. So we will provide a 0.12 percentage of the steel at mid span. So for providing a 12 percentage of the steel in a mid span, we have to find out the area of the steel. So for finding the area of the steel, we will put the value of PT in this equation, PT BD upon 100. So after putting this value, we can get AST is 300 mm square. So we will take average thickness here. So capital D is 300 plus 200 by 2.
So this will be a average thickness of the steel, and this we will use in a finding area of the steel. So after finding the area of the steel, we will provide that steel. So let's assume a 8 mm dia for provide steel at a mid span. So provide 8 mm dia at 160 mm center to center, and provided AST is 314 mm square in a horizontal direction at a mid span on a toe face. Right, हम लोगों ने मोमेंट फाइंड आउट कर ली और उसको प्रोवाइड भी कर लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील फाइंड आउट करेंगे स्टीम के अंदर. सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एवरेज स्टीम फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि एवरेज थिकनेस ऑफ द स्टीम. सो फॉर फाइंडिंग द एवरेज थिकनेस ऑफ द स्टीम वी विल पुट 200 + 300 by 2, because 200 is a top portion thickness and 300 is a bottom portion thickness, and we will take average thickness of a steam in a provision of a distribution steel in a stream. So provide minimum 12% of steel. So AST will be 0.12 divided by 100 into B into D. Here B is 1000 and D is 250. We have already finded that 250. So AST will be 300 mm square. हम लोग यहाँ पे भी 8 mm डाया का बार प्रोवाइड करेंगे एट 160 mm सेंटर टू सेंटर. सो हमें एरिया कितना मिल जाएगा, 314 mm स्क्वायर in a vertical direction on a toe face. So also provide 8 mm dia at 320 center to center both ways. That means 0.06% on a heel face. मतलब कि जो रोटेटिंग वॉल होती है उसकी जो टो वाला फेस है वहाँ पे हम लोग 160 mm सेंटर टू सेंटर पे 8 mm के डाया प्रोवाइड करेंगे, और जो हील फेस है वहाँ पे हम लोग 320 mm सेंटर टू सेंटर डाया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे 8 mm डाया प्रोवाइड करेंगे. सो मतलब कि हमें बोथ डायरेक्शन में स्टील प्रोवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील. अब हम लोगों ने ये स्टील तो प्रोवाइड कर लिया, बट हमें शेयर के लिए चेक करना पड़ेगा. सो वी विल डू चेक फॉर द शेयर. सो मैक्सिमम शेयर एट द फेस ऑफ काउंटर फोर्ट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे. सो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है WL/2, और उसको हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, because we will get a factored VU, right? So 1.5 into WL/2. In this equation we will put W, L and values of these both. So L is a clear span between a counterforts. So assume a width of the counterforts is a 300 mm, so, and the length is 3000. So we will minus this 300 for finding a clear span between the counterforts. So L will be a 2700 mm. So we will get L is 2.7 meter, and W we have also calculated. This is 40.26. So we will get VU as 81.52 kilonewton. अब हमें VU तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे, टाउ V फाइंड आउट करेंगे. सो टाउ V का इक्वेशन है VU अपॉन BD, वेयर VU इज 81.52 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइड बाय 1000 इंटू 250. सो टाउ V हमें कितना मिला, 0.326 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब टाउ C फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को पता ही है कि IS 456-2000 पेज नंबर 73 में से हमें एक टेबल पे से डायरेक्टली टाउ C की वैल्यू मिलेगी, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PT फाइंड आउट करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ द स्टील. सो हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया है वो परसेंटेज वो स्टील यहाँ पे लेंगे. सो PT फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है 100 AST अपॉन BD. यहाँ पे AST कौन सा लेंगे हम लोग, जो प्रोवाइडेड किया था. तो प्रोवाइडेड हमने 539 mm स्क्वायर किया था. सो वी विल टेक AST एज अ 539 mm स्क्वायर and BD 1000 into 250. So we will get a PT 0.215%. So from this PT we will get a tau C 0.34 Newton per mm square. Here tau V is less than tau C. So our design is in a shear is a safe, right? This is the plan where you can see this is the steam and this is the counterfort. Here the 40.26 kilonewton per mm square is a load, and L is a 2.7 meter, and this is 0.15 L. This is the difference from a counterfort to x direction. So सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे SF at a point of contrafracture.
सो कौन सा फैक्टर लेंगे हम लोग, हाँ देखा था 0.15L, ठीक है। सो यहाँ पे वी विल बी WL/2 माइनस 40.26 इंटू 0.15 इंटू 27। ये कैसे कैलकुलेट हुआ आप यहाँ से ये फिगर में से देख सकते हो, राइट। सो हमें V मिला 38.5 किलो न्यूटन और VU हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, सो हमें VU मिल जाएगा, ठीक है। ये V कैसे फाइंड आउट हुआ, आई होप आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो फिर से समझा दो। ये WL/2 यहाँ से ये डायरेक्शन में, मतलब कि हम लोग यहाँ से मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। WL/2 यहाँ पे लोड लग रहा है, उसके बाद क्या है 40.26 इंटू 0.15 इंटू 2.7। सो यहाँ पे 40.26 इसका लोड है इंटू उसके साथ मल्टीप्लाई किया है 0.15 इंटू L, मतलब L क्या है 2.7 है, ठीक है। सो ऐसे हमें V की वैल्यू मिल गई 38.5, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, सो हमें मिला 57.8 किलो न्यूटन। अब हम लोग देखेंगे MU1 डिवाइड बाई VU प्लस L0 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू LD, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमें कहाँ से मिला है, पेज नंबर 44 IS 456 2000 में से। यहाँ पे MU1 क्या है 22.64 किलो न्यूटन इंटू मीटर, जो हम लोगों ने आगे फाइंड आउट किया था। VU क्या है जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, उसकी वैल्यू है 57.08। L0 है इफेक्टिव डेप्थ जो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट की है, वो है 250। और LD कितना हो सकता है 47.5, ठीक है। 5 यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है 12 mm, सो इसलिए 5 की जगह पे हम लोग 12 mm पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है 646.64 mm शुड बी ग्रेटर देन 654 mm। सो ये जो हमारी कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सो दिस बार मस्ट बी एक्सटेंडेड अप टू अ पॉइंट एट लीस्ट L0 बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा उसका 0.15 L प्लस 250, सो 0.15 L यहाँ पे 2700 है प्लस 250, सो हमें कितना मिल गया 655 mm। सो उसको हम लोग सिमिलर करेंगे 700 mm ऑन अ फेस ऑफ काउंटर फोर्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कनेक्शन ऑफ अ स्टेम विथ अ काउंटर फोर्ट। तो स्टेम का कनेक्शन काउंटर फोर्ट के साथ कैसे करता है, तो स्टीम इज कनेक्टेड टू अ काउंटर फोर्ट बाय 2 leg हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स टू कैरी अ एंटायर शियर फोर्स, ठीक है। जो शियर फोर्स ज़्यादा हो जाता है उसको कैरी करने के लिए यहाँ पे 2 leg हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले उसका प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद उसका शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। सो प्रेशर कैलकुलेट हम लोग कोई एनी वाई डेप्थ पे करेंगे, तो उसकी जो हाइट है मतलब कि वो वाई की जगह पे वाई ही रखेंगे, ठीक है। सो हमें जो प्रेशर मिल रहा है वो वाई के फॉर्म में मिलेगा। सो इक्वेशन हमारा प्रेशर का क्या है कि KA इंटू गामा इंटू वाई, वहाँ पे KA हमें पता है 1/3 है, गामा हमें ऑलरेडी दिया है 16 और वी विल पुट y एज अ y। सो हमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट y डेप्थ कितना मिला 5.33 y। टोटल SF एट y डेप्थ फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.7 से, ठीक है। सो हमें टोटल SF एट डेप्थ y कितना मिला 14.39 y। तो ये हमें टोटल SF मिला, उसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने के बाद हम लोग AST फाइंड आउट करेंगे। सो AST जो फाइंड आउट करेंगे उसको भी हम लोग y के फॉर्म में करेंगे। सो हमें AST मिल गया y के फॉर्म में। अब हम लोग y की जगह पे 7.5 लेंगे, मतलब कि एट द बेस ऑफ स्टीम। एट द बेस ऑफ द स्टीम AST क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास AST का इक्वेशन है, उसमें y की जगह पे हम लोग 7.55 रख के फाइंड आउट करेंगे और एरिया ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें जो एरिया ऑफ द स्टील मिल रहा है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो ये क्या हो गया AST फॉर 1 leg ऑफ स्टीरअप, तो हमें कितना प्रोवाइड करना है 225.67 mm स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग 8 mm डाया की 2 leg हॉरिजॉन्टल स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे एट द रेट 220 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। सो हमारा ऑलरेडी AST क्या है 8 डाया का
228 है, और हम लोग 2 नंबर्स ऑफ 2 लेग्ड हॉरिजॉन्टल स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा प्रोवाइडेड AST कितना हो जाएगा 456 mm²। ठीक है, सो दिस स्टीरप्स विल ऑल्सो सर्व द पर्पस ऑफ शियर एनफोर्समेंट ऑफ अ काउंटर फोर्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई हम लोग एक और लेंगे, उसकी लेंथ रखेंगे 4.55 मीटर फ्रॉम टॉप। ठीक है, सो टॉप से अगर हम लोग 4.55 मीटर लेंगे तो बॉटम से कितना होगा, वो 3 मीटर होगा, क्योंकि हमारी हाइट कितनी है 7.55 मीटर है। सो अगेन हमने जो आगे प्रोसीजर की वो फिर से यहाँ पे फॉलो करेंगे, और यहाँ पे हम लोग y की जगह पे 4.55 रख लेंगे और AST फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे AST हमें कितना मिला 272 mm² फॉर 2 लेग्स। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, 1 लेग ऑफ स्टीरप्स कितना हो जाएगा वो फाइंड आउट करेंगे, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। सो हमें यहाँ पे AST फॉर 1 लेग स्टीरप मिल गया, उसको प्रोवाइड करेंगे 6 mm डाया से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 6 mm डाया ले रहे हैं, क्योंकि ये कर्टेलमेंट टाइप के बार्स आएंगे आपके काउंटर फोर्ट के कनेक्शन में। ठीक है, सो प्रोवाइड 6 mm डाया एट 200 mm सेंटर टू सेंटर 2 लेग हॉरिजॉन्टल स्टीरप्स। सो हम लोग यहाँ पे 2 लेग स्टीरप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा AST प्रोवाइडेड कितना मिला 282 mm²। ठीक है, सो नॉर्मली बेसिकली हम लोग नीचे लिख लेंगे कि 0 to 3 मीटर की हाइट में हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 8 डाया 2 लेग स्टीरप्स एट 220 mm सेंटर टू सेंटर, और 3 to 7.5 मीटर हाइट में हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 6 डाया 2 लेग स्टीरप्स एट 200 mm सेंटर टू सेंटर। सो ये पूरी आपकी डिज़ाइन कौन सी हो गई, स्टीम की। हम लोगों ने क्या किया आज, स्टीम की डिज़ाइन की, और स्टीम का और काउंटर फोर्ट का कनेक्शन क्या है, और वो कनेक्शन के बीच में हम लोग स्टील कैसे प्रोवाइड करेंगे वो फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले प्रीलिमिनरी डायमेंशंस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करोगे, और उसके बाद स्टेम की डिज़ाइन करोगे। आपको यहाँ तक आज का एग्जांपल करना है। ओके, और कोई भी डाउट है तो हम लोग गूगल क्लास पे मिलेंगे और डाउट सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।